Hello students, good morning. Jai Swaminarayan. All of you welcome to class 4 in Atmiya Green School. My name is Prajakta and I am your maths teacher. So now we will start chapter number 5, factors and multiplies. So exercise 5.10 question number A we had done in our last classes. Now we will start question number B. But before starting our question number B, first we will see what you had learned in our last classes. So what you had learned our last classes, first we had learned about the multiplies, then property of multiplies. How many property of multiplies? 5 property of multiplies. Then next is the odd and even number. Which is the odd number and which is the even number? A number which is multiple of 2. A number which is multiple of 2 is called even number. A number which is not multiple of 2 is called odd number. And then next is the factor. So what is the factor? A factor of number divide the number without leaving a remainder. Factor किसके बोलते हैं? जिसका रिमाइंडर क्या रहता है? जीरो होता है. डिवाइड करने के बाद उसको बोलते हैं फैक्टर्स. देन नेक्स्ट इज द फैक्टर ट्री. दिस इज द डायग्राम ऑफ फैक्टर ट्री. देन प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर. A number which have only two factor. A number which have a two factor. The number 1 and its self number are called prime number. Prime number किसको बोलते हैं? जो नंबर के फैक्टर 2 है. कौन से 2? 1 and number itself. इसको बोलते हैं प्राइम नंबर. A number which have a more than 2 factor. A number which have a more than 2 factors. 2 से ज़्यादा फैक्टर्स है उसको बोलते हैं हम कंपोजिट नंबर. देन 4 प्रॉपर्टी ऑफ फैक्टर्स. प्रॉपर्टी कितने हैं फैक्टर्स के? 4 प्रॉपर्टी. देन ट्विन प्राइम नंबर. टू प्राइम नंबर विच डिफर बाय 2. 2 प्राइम नंबर है और उसका डिफरेंट कितना है? 2 है. उसको हम बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर. देन कॉमन फैक्टर. विच इज द कॉमन फैक्टर? For example, we are taking the 12 and 15. Okay. Now, which is the common from 12 and 15? 15 और 12 में से कौन से फैक्टर सेम है? 1 and 3. This is the common factor. Now, we want the HCF, highest common factor. Highest means सबसे बड़ा वाला नंबर. Now, which is the highest number from 1 and 3? So, 3 is the highest factor. Okay, means this is the HCF. Then next is the coprime. 2 number which have only 1 as the common factor. क्या है? 1 सिर्फ उसका कॉमन फैक्टर है, उसको बोलते हैं कोप्राइम नंबर. फॉर एग्जांपल 15 and 16. ओके. 15 और 16 के फैक्टर निकालने के बाद उसमें सिर्फ क्या कॉमन है? 1 इज द कॉमन. मीन्स 15 and 16 दे आर द कोप्राइम नंबर. दिस लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल. After take outing multiples, now here example 3 and 4. 3 और 4 के multiplies निकाले. Which is the common? 12, 24 and 36. This is the common. Now we want a LCM. LCM means lowest common multiplies. मतलब सबसे छोटा नंबर. 12, 24 और 36 में सबसे छोटा क्या है? 12 है. So 12 is the lowest common multiple. Okay. Then next is the prime factorization. What is the prime factorization? A factorization in which every factor is the prime is called prime factorization of number. जो पूरे नंबर है हमारे जितने भी फैक्टर्स है वो क्या चाहिए हमें? प्राइम. फर्स्ट इज द व्हाट इज द प्राइम? प्राइम मीन्स द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर. विच 2 फैक्टर? 1 and number itself. दिस इज कॉल्ड प्राइम. तो हमें क्या चाहिए? प्राइम नंबर. जो भी नंबर है उसके जितने भी फैक्टर्स हैं हमें क्या चाहिए? प्राइम चाहिए. तो हम उसको क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन. ओके. सो फॉर दैट हैव अ एग्जाम्पल. ओके. 48 के यहाँ पे 4 into 12 ऐसे हमने फैक्टर निकाले. नाउ 4 and 12 बोथ आर द कंपोजिट है. ये प्राइम नहीं है तो हमें इसको क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा?
प्राइम फैक्टराइजेशन। नाउ 4 को हम 2 इंटू 2 4 होता है, मतलब 2 और 2 क्या हो गया 4 के प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। नाउ 12 के 2 और 6 12 होता है, मतलब 2 और 6 क्या है हमारे 12 के फैक्टर से। नाउ 2 इज़ द प्राइम, 6 को हमें भी प्राइम में कन्वर्ट करना है, तो 2 इंटू 3 क्या होता है 6 होता है। नाउ विच इज़ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 48, 2 2 2 2 and 3, दिस इज द prime factorization of 48. Then prime factorization by division method, कौन से मेथड है डिवीजन मेथड है। फॉर एग्जांपल 20 है, ओके 20 को हमें क्या करना है फैक्टर निकालने हैं प्राइम फैक्टर बाय यूजिंग द डिविजनल मेथड। 20 है, अगर 20 को हम 2 के साथ डिवाइड करेंगे, 2 क्यों लिया है क्योंकि 2 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ओके 2 को हम 20 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन मिलता है 10 मिलता है, तो हमने क्वेश्चन 20 के नीचे लिखा है, और हमारा जो डिविजिबल है मतलब 2 हमने क्या लिखा है 20 के साइड में लिखा है। नाउ दिस 10 आल्सो कंपोजिट नंबर, 10 कंपोजिट नंबर है, और कौन सा नंबर है इवन नंबर भी है, तो हम क्या करेंगे 10 को क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, तो हमें क्वेश्चन मिलता है 5, और 2 यहाँ डिविजिबल है। नाउ 5 इज़ द प्राइम नंबर, तो 5 साथ डिवाइड करेंगे तो हम क्वेश्चन कितना मिलता है 1 मिलता है। सो व्हाट इज़ द फैक्टर्स ऑफ 20, 2 2 एंड 5, दिस इज़ द फैक्टर्स ऑफ 20। देन SCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, हमने क्या किया है SCF निकाला है यूजिंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। इन दिस मेथड वी आर फर्स्ट यूजिंग द डिवीजन मेथड, ठीक है डिवीजन मेथड यूज़ किया है। फॉर एग्जांपल 6 एंड 18, 6 और 18 को डिवीजन मेथड निकालने के बाद हमारे फैक्टर्स निकाले 2 3, 6 के फैक्टर से और 18 के फैक्टर से 2 3 3, ओके नाउ वी विल टेक आउट द कॉमन, विच इज़ द कॉमन 2 एंड 3 इज़ द कॉमन, और जो कॉमन है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलता है 6। दिस इज द SCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, ओके नाउ LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, इसमें हम क्या करते हैं सबसे पहले फैक्टर्स निकाले हैं बाय यूजिंग द डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड यूज़ करके हमने फैक्टर निकाले। 12 के क्या फैक्टर्स निकले हैं 2 2 3, एंड 15 के फैक्टर्स क्या है 3 एंड 5 है। नाउ फर्स्ट वी विल सी विच इज़ द नंबर इज़ कॉमन, इसमें कॉमन क्या है 3 कॉमन है, ठीक है तो हम क्या करेंगे 3 कॉमन है तो सबसे पहले हम 3 लिख लेंगे। नाउ जो भी नंबर बचे हुए हैं मतलब 2, यहाँ पे 2 बचे हैं, ओके नाउ यहाँ पे 5 बचा है, तो हम इसको क्या करेंगे सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलता है आंसर 60, ओके नाउ लुक एट देयर exercise question number B. Question number A already done in our last class. So now look at in question number B. Complete the following factor tree. ये हमें factor tree complete करना है. At the bottom of each tree write the given number as the product of its prime factorization. हमें प्राइम फैक्टराइजेशन में इसमें कन्वर्ट करना है। फाइंड द LCM ऑफ नंबर फ्रॉम द प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है हमें LCM निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन से। सो लुक एट देयर 16, ओके 16 के यहाँ पे ऑलरेडी 8 दिया हुआ है, तो 8 को क्या मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 16 मिलता है 2। सो नाउ दिस इज 8 इंटू 2 16 मिल गया। नाउ दिस 2 इज़ द प्राइम नंबर है, 2 क्या है प्राइम नंबर है, तो 2 हम एज इट इज़ नीचे लिख लेंगे, ठीक है। नाउ 8 इज़ द कंपोजिट नंबर, अभी हमें 8 को कन्वर्ट करना है प्राइम में। अगर हम 4 इंटू 2 करेंगे, फर्स्ट तो हम 2 को डिवाइड करके देखेंगे 8 को, 2 8 के साथ डिवाइड होता है क्या, अगर डिवाइड करेंगे तो हमें क्वेश्चन कितना मिल रहा है 4 डिवाइड हो गया। अभी 2 इंटू 4 करेंगे तो हमें 8 मिलता है, 4 इंटू 2 8 हो गया। नाउ दैट 2 इज़ द प्राइम नंबर, अभी हमें 4 को कन्वर्ट करना है,
तो ये 2 एज इट इज़ कैरी किया, ये 2 भी एज इट इज़ कैरी किया। अब ये 4 है, 4 का हमें कन्वर्ट करना है। 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 होता है। नाउ दैट 4 आल्सो प्राइम नंबर, 4 भी क्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया। नाउ क्या हो गया 16 के फैक्टर्स, 2 2 2 2, दिस इज द फैक्टर्स ऑफ 16। 16 के क्या फैक्टर्स निकले, 2 2 2 एंड 2, दिस इज द प्राइम नंबर। नाउ इन लुक एट 24। ओके, 24 में क्या है, 12 इंटू 2 करेंगे तो 24 आता है। 12 ऑलरेडी दिया हुआ है, हमें क्या करना है, 12 को क्या मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 24 मिलता है। दिस इज 12 इज द 2 इज द प्राइम नंबर। 2 क्या है हमारा, ये प्राइम नंबर है। सो 2 को हम एज इट इज कैरी करेंगे। नाउ लुक एट इज 12। सो 12 इज द कंपोजिट नंबर। 6 इंटू 2, 6 इंटू 2 क्या होता है, 12 होता है। सो नाउ 2 इज द प्राइम नंबर, 2 को हम एज इट इज कैरी करेंगे और ये भी 2 को एज इट इज कैरी करेंगे। नाउ 6 इज द कंपोजिट नंबर। अगर हम 3 इंटू 2 करेंगे तो हमें क्या मिलता है, 6। सो व्हाट इज द फैक्टर्स ऑफ 24, 3 2 2 एंड 2। नाउ लुक एट द फाइंड द एलसीएम ऑफ नंबर विच इज द प्राइम फैक्टर। हमें एलसीएम निकालना है। सो कौन से नंबर यहाँ पे कॉमन है, 2 इज द कॉमन। ओके, दैट 2 इज द कॉमन, दैट 2 आल्सो कॉमन हो गया यहाँ पे। तो हम पहले कॉमन वाले लिख देंगे। हमने लिख दिया जो 2 कॉमन है, 1 2 3 1 2 3 कॉमन वाले लिख दिए। ये अनकॉमन वाला 2 लिख दिया और ये 3। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलता है, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 4 इंटू 2 8 एंड 8 इंटू 2 8 इंटू 2 16 एंड 16 इंटू 3 48। तो हमें कितना मिल गया, हमारा एलसीएम 48। So this is the example number 2. This is the homework for you. Example number 2 आपके लिए क्या है, homework है. Now we are starting the test of divisibility. Okay. So how to test divisibility? How will you test if 6504 अगर कौन सी वैल्यू है 6504 है इज़ डिविजिबल बाय 5. ये 5 से कैसे डिविजिबल है, डिवाइडिंग 6504 एंड फाइंडिंग आउट इफ द रिमाइंडर इज 0 विल टेक सम टाइम. अगर हम इसको 5 को डिवाइड करेंगे तो हमें क्या लगेगा, इसको निकालने के लिए टाइम लगेगा. सो हियर आर सम शॉर्टकट how to take out. Okay, divisible. If you remember some simple rule, you can test the divisible very quickly. अगर आपको कुछ रूल पता है तो आप क्या करोगी, क्विकली आप क्या कर सकते हो, डिविजिबिलिटी निकाल सकते हो. सो फर्स्ट इज द 10. 10 की डिविजिबिलिटी कैसे निकालते हैं, लुक एट 10 इंटू 2 कितना होता है 20. 10 इंटू 5 50. 10 इंटू 12 120. सो लुक एट ईयर केयरफुली. ओके, जो भी हमने आंसर निकला है उसमें वंस प्लेस पे क्या आ रहा है, सभी इसमें 0 आ रहा है. 10 इज डिवाइजेबल ऑफ 20 50 एंड 120. व्हाट डू यू नोटिस, आप क्या नोटिस कर रहे हो, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 10 if it has a 0 in its one place. हम क्या करेंगे, जिसके भी प्लेस में लास्ट वाला जो वंस वाला प्लेस है उसमें 0 है, क्या है 0 है, तो वो क्या है 10 का डिविजिबल है. जो भी लास्ट वाला वंस वाला प्लेस है, कौन सा प्लेस है, वंस वाला प्लेस है, उसमें क्या है
जीरो है तो वो क्या है 10 का डिविजिबल है. ओके, नाउ हाउ टू फाइंड 5 डिविजिबिलिटी. 5 का डिविजिबिलिटी कैसा है समझेंगे. 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 2 कितना होता है 10, 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 6 30, 5 इंटू 7 35, 5 इंटू 12 60 and 5 into 15 75. So here also look at there. अगर हमें 5 का डिविजिबल निकालना है तो हमें क्या चाहिए, जो वंस वाली प्लेस है लास्ट वाला जो नंबर है वो एक जीरो चाहिए, नहीं तो हमें क्या चाहिए 5 चाहिए. लास्ट वाला नंबर हमें क्या चाहिए जीरो, नहीं तो 5. 5 is a divisible of 10, 30, 60, 15, 35 and 75. A number is divisible by 5 if it has a 0 or 5 in the one place. अगर वन प्लेस पे क्या है जीरो है नहीं तो 5 है तो वो किसका डिविजिबल है 5 का डिविजिबल है. ठीक है. नाउ लुक एट इन 2. 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 12 24, 2 into 16 32, 2 into 23 46, 2 into 25 50. So look at there. 2 is a divisible of 4, 8, 24, 32, 46, 50. Notice that these numbers have a 0, 2, 4, 6 or 8 in their one place. हम कैसे पहचानेंगे कि 2 का डिविजिबल है, लास्ट वाली जो वंस वाली प्लेस है वहाँ पे कौन से नंबर चाहिए 0, 2, 4, 6, 8. लास्ट नंबर क्या चाहिए वंस प्लेस 0, 2, 4, 6, 8. अगर ये नंबर है तो वो क्या है 2 का डिविजिबल है. ओके, नाउ डिविजिबल बाय 3. सो लुक एट इट. 3 इंटू 5 कितना होता है 15 एंड 1 प्लस 5 कितना होता है 6. 1 प्लस 5 कितना होता है 6 होता है. मतलब ये जो 15 जो आया है उसको हमने प्लस किया है. 1 प्लस 5 इक्वल टू 6. 6 इज डिविजिबल बाय 3. 6 ये जो है वो 3 को डिविजिबल है. यस, 3 इज प्रेजेंट ऑन द 6 टेबल. नाउ 3 इंटू 42. अगर 3 इंटू 42 किया तो हमें कितना मिलता है 126. अभी हम क्या करेंगे 126 को ऐड करेंगे, मतलब 1 प्लस 2 प्लस 6, 1 प्लस 2 प्लस 6 इक्वल टू 9. हाउ मच 9. सो लुक एट द 9. जो 9 है वो 3 का डिविजिबल है. यस, 3 इंटू 3 9 होता है. मतलब ये क्या है 126 आल्सो डिविजिबल बाय 3. 3 इंटू 124. 3 इंटू 124 कितना मिलता है 372. 372. नाउ वी आर एडिंग दिस नंबर. ओके, अगर अभी हम क्या करेंगे ऐड करेंगे ये तीनों नंबर को. 3 प्लस 7 प्लस 2 कितना होता है 3 प्लस 7 प्लस 2 12 होता है. 12 3 को डिवाइड होता है. यस, 3 4 का 12 होता है. मतलब क्या हो गया 12 भी डिविजिबल है. ठीक है. नाउ 3 इंटू 1246 कौन सा नंबर है 3 इंटू 1246 है. ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर कितना मिल गया 3738. अभी हम क्या करेंगे ये चारों को ऐड करेंगे. 3 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 8 हमें कितना मिल गया 21 है. सो ये 21 3 को डिविजिबल है. यस, 27 ये क्या है 3 को डिविजिबल है. 7 3 इंटू 7 करेंगे तो कितना होता है 21 होता है. ओके, नोटिस दैट द सम ऑफ डिजिट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3 इट divisible by 3. Work out the sum digit few numbers which is not multiple of 3. 16, 124, 3
3520 से यू कैन फाइंड सम इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3. ठीक है, फॉर एग्जांपल दिया है उन्होंने. अभी 16 है, 16 प्लस मतलब 1 + 6 करेंगे तो कितना होता है, 7 होता है. तो 7 ये 3 को डिवाइड होता है क्या, नहीं होता है. मतलब 16 डिविजिबल नहीं है किसको, 3 को. ठीक है, देन 124. अगर 1 + 2 + 4 करेंगे, 1 + 2 कितना होता है, 3 एंड 3 + 4 7. सो 7 आल्सो नॉट डिविजिबल बाय 3. 7 डिविजिबल होगा क्या 3 को, मतलब 3 को 7 के डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर 0 बचता है क्या, नहीं. 3 2 का 6 एंड 1 0 1 आ रहा है, मतलब ये डिविजिबल है क्या, नहीं आ रहा है. ओके, नाउ डिविजिबल बाय 4. 4 का डिविजिबल कैसे है वो कैसे समझ में आएगा. लुक एट 416 is a divisible by 4. 416 is divisible by 4. The last two digit from the 16 which is divisible by 4. 4 का डिविजिबल कैसे निकालेंगे, जो लास्ट वाले 2 डिजिट है. कौन से डिजिट, लास्ट वाले 2 डिजिट, मतलब एक 1 वाले प्लेस वाली और एक 10th प्लेस वाली. वो हमें क्या चाहिए, 4 का डिविजिबल चाहिए. किसका डिविजिबल चाहिए, 4. यहाँ पे क्या है, 16 है. अगर 4 को 16 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलता है, 4 4 का 16, मतलब 0 आ गया. मतलब ये 16 डिविजिबल है. यस, नाउ लुक एट देयर 88. अगर हम 4 को 88 के साथ डिवाइड करेंगे तो डिवाइड होता है 4 2 8 0 एंड 8 एंड 4 2 8 0. मतलब ये 88 भी डिविजिबल है 4 को. यस, हमें क्या देखना है इसमें, लास्ट 2 डिजिट देखना है कि वो डिविजिबल है कि नहीं. नाउ ये देखो 32,896 ये डिविजिबल है कि नहीं 4 को. तो हम क्या करेंगे, 96 को डिवाइड करके देखेंगे. 4 डिवाइडेड बाय 96. ओके, अगर 4 को हम 96 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमें मिलता है क्या इसका, देखो 4 2 8 1 6, 4 4 का 16, मतलब ये डिविजिबल है. तो 4 ये 96 भी क्या है, डिविजिबल है. नाउ एग्जाम्पल नंबर 2. 3462 है. 3462. अभी ये 62 को हम 4 को डिवाइड करके देखेंगे. 4 1 4 2 2 22 आ गया. 22 4 को डिवाइड हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है. मतलब ये 62 क्या है, नॉट डिविजिबल है. 62 इज नॉट डिविजिबल बाय 4. द लास्ट 2 डिजिट फ्रॉम 62 विच इज नॉट डिवाइजिबल बाय 4, देयरफॉर. ओके, नाउ इन लुक एट डिविजिबल बाय 9. ठीक है, 9 के डिविजिबल निकालना है तो हम क्या करेंगे, जो भी वैल्यू है उसको हम ऐड करेंगे. तो हम क्या करेंगे, 3 क्या है नंबर, 13,464 है. तो हम ऐड करेंगे 1 + 3 4 + 6 + 4. अगर हम सबको ऐड करेंगे तो हमें मिलता है 18 मिलता है. ओके, सो 18 इज़ डिविजिबल बाय 9. यस, अगर 9 के साथ 18 को डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिलता है, क्वेश्चन 2 मिलता है. मतलब 18 इज़ आल्सो डिविजिबल बाय 9. 18 क्या है, 9 का डिविजिबल है. देन लुक एट देयर 43,256. 43,256. अभी हम इसको ऐड करेंगे जो भी पूरा नंबर है. 4 + 3 7 7 + 2 9 9 + 5 14 एंड 14 + 6 20. 29 के साथ डिवाइड होता है क्या, नहीं होता है. सो 20 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 9. सो ये क्या है, 43,256 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 9. तो ये क्या है, 9 के साथ डिविजिबल नहीं है. सो अ नंबर विच डिविजिबल बाय 9 इट इफ़ द सम ऑफ इट डिजिट इज़ डिविजिबल बाय 9.
ये जो पूरे नंबर है उसको हम ऐड करने के बाद अगर हमें क्या मिलता है, उसका क्या मिलता है, जीरो, उसका क्या होता है, जो भी एडिशन है वो 9 के साथ डिवाइड होता है, मतलब वो 9 का डिविजिबल है। ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग एक्सरसाइज 5.11. ओके, नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग three example and 3 example homework for you. So first look at here by 10. ठीक है, सबसे पहले क्या है, 10 का डिविजिबल है कि नहीं देखना है। 10 के डिविजिबल के लिए हमें क्या चाहिए, लास्ट वाला जो 1 वाला प्लेस है वो हमें 0 चाहिए। ठीक है, सो लुक एट हियर इज़ द 95 का क्या है, यहाँ पे 95 मतलब लास्ट वाला डिजिट क्या है, 5 है। सो 95 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 10. नाउ एग्जाम्पल नंबर 2, 118, यहाँ पे लास्ट वाला जीरो डिजिट क्या है, 0 है, वंस वाली वैल्यू, मतलब 180 क्या होगा, 10 का डिविजिबल है। 180 इज़ डिविजिबल बाय 10. नाउ यहाँ पे 200. ओके, 200 में लास्ट वाला वंस वाली वैल्यू क्या है, 0 है, मतलब ये भी क्या है, 10 का डिविजिबल है। नाउ 5 के डिविजिबल के लिए हमें क्या चाहिए, जो वंस वाली प्लेस है वो 5 नहीं तो 0 चाहिए। सो यहाँ पे 5 है, मतलब ये 125 इज डिविजिबल बाय 5. नाउ 2 नंबर 328. 320 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 5 क्योंकि लास्ट वाला जो नंबर है वो क्या है, 8 है, हमें क्या चाहिए, 5 नहीं तो 0. नाउ 43,210, लास्ट वाला डिजिट क्या है हमारा, 0 है, मतलब ये भी 5 का डिविजिबल है. नाउ लुक एट हियर 2 के लिए हमारा रूल क्या है, हमारे लास्ट वाला डिजिट क्या चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8. सो लुक एट देयर, यहाँ पे 4 है, मतलब हमारे रूल में है, तो 854 इज डिविजिबल बाय 2. यहाँ पे 4 है, मतलब 4 डिविजिबल है 2 का, यस. 1424 इज डिविजिबल बाय 2. नाउ लुक एट देयर लास्ट डिजिट, दिस इज द 5, ये क्या है, 5 है. सो मतलब ये, सॉरी, लास्ट डिजिट क्या है, 3 है. 1563, लास्ट डिजिट 3 है, मतलब ये क्या है, 2 का डिविजिबल नहीं है, हमें क्या चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8. सो दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 2. नाउ डिविजिबल बाय 3 का डिविजिबल कैसे होता है, जो भी नंबर है उसको हम ऐड करते हैं. यहाँ पे क्या है, 2465, अभी हम सबको ऐड करेंगे. 2 + 4 6, 6 + 6 12 एंड 12 + 5 17. ओके, 17 3 के साथ डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा. सो 17 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3. सो 2464 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3, ये क्या नहीं है, 3 का डिविजिबल नहीं है. नाउ 8031, इसको ऐड करेंगे. 8 + 0 8, 8 + 3 11 एंड 11 + 1 12. सो 12 3 के साथ डिवाइड करेंगे, डिवाइड होता है, यस. अगर 3 को 12 के साथ डिवाइड करते हैं तो 4 आता है क्वेश्चन, मतलब रिमाइंडर हमें आता है 0. 12 इज़ द डिविजिबल बाय 3. सो 8031 इज़ द डिविजिबल बाय 3. नाउ 5007 को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, मतलब 5 + 0 + 0, 5 + 0 5, 5 + 0 5, 5 + 7 12 आता है, मतलब ये क्या है, डिविजिबल है, यस. सो ये क्या है, 12 इज़ द डिविजिबल बाय 3. सो 5007 इज आल्सो डिविजिबल बाय 3. नाउ 4, ठीक है, 4 का डिविजिबल. 4 के डिविजिबल के लिए हमारा रूल्स क्या है, लास्ट जो 2 डिजिट है वो क्या चाहिए, 4 का डिविजिबल चाहिए. नाउ 5662 में हम लास्ट वाला जो डिजिट है 62, उसको 4 के साथ डिवाइड करके देखेंगे. ठीक है, 4 × 1 = 4,
2 एंड 2 22 22 4 के साथ डिवाइड होगा क्या? नहीं होता है। अगर हम 4 5 से 20 करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 2 बचता है, मतलब 5662 इज नॉट डिविजिबल बाय 4. Okay, because last two digits are not divisible by 4. Now look at in example number 2. So in example number 2, which number? 40. Okay, so 40 मतलब अगर 4 10 का क्या होता है? 40 होता है, मतलब ये क्या है? डिविजिबल है. So 340 is divisible by 4. The last two digit from the 40 which is divisible by 4, मतलब ये क्या है? 4 का डिविजिबल है. नाउ 43 को हम 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो 4 1 सा 4 0 3 आता है, मतलब 3 ये अभी डिवाइड हो क्या? नहीं, मतलब ये क्या है? 4 का डिविजिबल नहीं है. नाउ 6 नंबर में क्या है? एग्जाम्पल नंबर 9. ओके, सॉरी, डिविजिबल बाय 9. हम क्या करते हैं? 9 के लिए ऐड करते हैं जो भी नंबर है. 3 + 8 कितना होगा? 11. 11 + 1 12 एंड 12 + 3 15. सो 9 15 का डिविजिबल है क्या? नहीं है. तो क्या ये 9 का डिविजिबल नहीं है. देन ये 4698 को ऐड करेंगे. 4 + 6 10 10 + 9 19 एंड 19 + 8 27. सो 27 ये 9 का डिविजिबल है, मतलब क्या है? ये क्या है? 27. ये जो वैल्यू है वो 9 का डिविजिबल है. 27 इज डिविजिबल बाय 9. सो 4698 इज also divisible by 9. 4698 is also divisible by 9. Now look at the 60,921. अभी हम सबको ऐड करेंगे. 6 + 0 6, देन 6 + 9 15, 15 + 2 17 एंड 17 + 1 18. सो 18 9 का डिविजिबल है. यस, तो 16,921 इज डिविजिबल बाय 18. Okay, so I am explaining here three examples. So whatever remaining next from exam 4 to 6, this is the homework for you. Okay, I hope all of you nicely understood. Thank you and have a nice day.